خیرپور ٹامے والی کے نواحی علاقے میں افسوسناک واقعہ، اقبالہ میں الیکٹریشین کرنٹ لگنے سے جم ہٹ۔ پرائیویٹ الیکٹریشین میپکو افسران کی مبینہ ملی بھگت سے فیڈر پر کام کرتا تھا۔ میپکو افسران کا اپنی مجرمانہ غفلت چھپانے کے لیے الیکٹریشین کے ورثاء پر دباؤ۔ ڈھیرکی میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، نامعلوم ڈاکو سنیل کمار نامی شہری سے 5 لاکھ روپے نقدی اور سونے کی چین چھین کر فرار۔ پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام، شہری عدم تحفظ کا شکار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے۔ ٹنڈوالا یار کے علاقہ بھیل کالونی میں گھر میں آتش زدگی، آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر میں موجود تمام سامان جل کر خاک ہو گیا۔ اطلاع کے باوجود فائر بریگیڈ عملہ نہ پہنچ سکا۔ متاثرہ شخص کی منتخب نمائندوں اور مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل۔ گجرانوالہ میں بجلی بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف شہری سراپا احتجاج، ڈول کے مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، ٹریفک کی روانی معطل ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ مظاہرین کا بجلی بلز سے اضافی ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ اور کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی میں بجلی کی سپلائی 30 جون کے شیڈول کے مطابق ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ یا شیڈول میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، سجاول میں 11 محرم الحرام کا مرکزی جلوس، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شیر میر سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ آج 11 محرم الحرام کا دن ہے۔ 11 محرم الحرام کے دن آج سجاول میں جو مرکزی کیری امام بارگاہ ہے، جس سے سب سے بڑا ماتمی جلوس برآمد آج 3 بجے ہوگا۔ ماتمی جلوس میں ہزار عزادار اور مومنوں کی شرکت متوقع ہے۔ ماتمی جلوس میں سینہ زنی اور نواخونی بھی کی جائے گی۔ ماتمی جلوس اپنے مختلف روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینی امام بارگاہ اختتام پذیر ہوگا۔ جب بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو SSB سجاول کی جانب سے ماتمی جلوس کی فل فروغ سیکورٹی انتظام کیے گئے ہیں۔ داخلی خارجی راستوں کو مکمل سیل کیا گیا ہے، جبکہ شہر کے گلیوں کو کناروں سے بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹاؤن انتظامیہ جانب سے جو صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، اور سبیل کی بات کی جائے تو جگہ جگہ پہ سبیلیں قائم کی گئی۔ گلشیر میر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جنگ میں 2 ماہ قبل بننے والا روڈ خستہ حال، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے۔ جاوید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں پرانے چنڈ روڈ پہ موجود ہوں، جو 1 کلومیٹر کا فاصلہ ایوب چوک سے لے کر رشید چوک تک جون میں یہ تیار ہوا ہے۔ اس روڈ کے اوپر لاکھوں کروڑ روپے کا خرچہ ہے۔ 1 کلومیٹر کا جو روڈ ہے، لیکن اس روڈ نے ایک بارش برداشت نہ کی ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی کی وجہ سے یہ ٹوٹل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ناقص مٹیریل استعمال، لوکل گورنمنٹ کی جانب سے اس کو یہ ٹینڈر دیا گیا تھا۔ جس ٹھیکیدار کو ٹینڈر ملا تھا، ٹھیکہ ملا تھا، اور ٹھیکیدار نے جو یہ کام کیا ہے، یہ بالکل عوام کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے۔ اور ان کی کرپشن کی وجہ سے آج یہ جو لوگ ہیں اس روڈ سے محروم ہو چکے ہیں۔ دکانداروں کو یہی کہنا ہے کہ ہم اس روڈ کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ اس روڈ کے اوپر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ بھی ناقص ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہے، آئیے ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ دیکھ رہے ہیں 2 ماہ پہلے جو ہے نا روڈ بنا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے روڈ بنا ہی نہیں ہے۔
इसी के ऊपर उन्होंने बजरी वगैरह डाल के ऊपर लोग नाकिस लोग और लोग जो है ना वो क्या कहते हैं अपना सिस्टम चला के, ठेकेदार साहब भी गायब हो चुके हैं इस वक्त और इंतज़ामिया वो सो गई है। बिल्कुल जनाब, मोटरसाइकिल हमारे ख़राब हो जाते हैं, रोड ऐसा नाकिस माल लगा है, 2 महीने नहीं चल रही सड़क। ये जो मिली भगत से इन्होंने पैसे खा लिए हैं, रोड टूटा पड़ा है, कोई हालात नहीं है इधर के। इस रोड पे पुराना जिनो रोड बहुत चलता है मगर बिल्कुल बेकार है। जो रोड है 1-2 माह भी इस तरह निकाले। जावेद इकबाल रोड की खस्ता हाली के हवाले से बता रहे थे। कोट चट्टा के इलाके मौजे जांगला में लंपी स्किन वायरस के वार शिद्दत से जारी हैं, जिसकी वजह से अब तक लाखों रुपए मालियत के कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट चट्टा के इलाके मौजा जांगला में, जहाँ पर मूजी वायरस लंपी स्किन की वजह से अब तक लाखों मालियत के कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं। महकमे लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो महकमे लाइफ स्टॉक की किसी किस्म की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। कुछ रिहायशी यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, ये जो मूजी वायरस आया हुआ है इससे कितने कीमती जानवर हलाक हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं ये लंपी स्किन वायरस आई हुई है, जिसकी वजह से हमारे लाखों मालियत के मवेशी मर चुके हैं और अभी हलाक हो रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किया गया। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि महकमा लाइफ स्टॉक के खिलाफ सख्त एक्शन ले और हमारे जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करें। अजीत, जैसा कि आपने रिहायशी से जाना है कि महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से यहाँ पर किसी किस्म की कोई टीम नहीं है, जिसकी वजह से उनके लाखों मालियत के जानवर हलाक हो रहे हैं। यहाँ के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि महकमे। ऐसा नज़ा खोखर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शरकपुर शरीफ में हल्का PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन का मामला, कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मज़ीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। फजल, अपडेट कीजिएगा। जी, तहसील म्यूनसिपल कमेटी में ज़िमनी इंतखाबात PP 139 जो 11 सितंबर को हो रहे हैं, उस सिलसिले में स्क्रूटनी का अमल जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी के अमल को देख रहे हैं। 18 उम्मीदवारों की दरखास्तें जमा हैं और रिटर्निंग ऑफिसर आज 4 बजे तक स्क्रूटनी के अमल को मुकम्मल कर लेते हैं। आइए रिटर्निंग ऑफिसर से जानते हैं कि स्क्रूटनी के अमल को किस तरह देख रहे हैं। हमने कागजात नामजदगी के डिफरेंट कैंडिडेट से वसूल किए थे, जिनकी आज हमने जांच पड़ताल रखी है और उनकी जांच पड़ताल के लिए हमने उनको आज का टाइम जो है वो दिया हुआ है कि वो आकर अपने स्क्रूटनी कराएं अपने नॉमिनेशन पेपर्स की। कल हम अपना फ़ैसला जो है वो लगाएंगे कि किसके कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट हुए हैं और उसके बाद उनका अब बस अपने अपील का राइट है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं PP 139 से ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन लड़ने वाले चौधरी समीउल्लाह बुक्का। आइए उनसे पूछते हैं कि वो स्क्रूटनी के अमल के बाद क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है, हमारे पेपरों को क्लियर कर दिया RO साहब ने। तो फिर आइंदा के लाए अमल के लिए इकट्ठ करते हैं अपने दोस्त अहबाब का। जो भी मेरे दोस्त फैसला करेंगे इंशाल्लाह ताला उसी सिमत में चलेंगे जो उनका फैसला होगा। पहले वो सारे दोस्त अहबाब मेरे पीछे खड़े थे। अब फजल कयूम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पतोकी में सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सरदार आसिफ नकी की ज़ेर सदारत अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर DPO कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी और ज़िला अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अहम इजलास में डिप्टी कमिश्नर फ़याज़ अहमद मोहल और DPO सुहेब अशरफ की जानिब से सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन को अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गुजरांवाला में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहरीन ने डंगा फाटक के अतराफ रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए। ओकाड़ा में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई की वजह से गरीब आदमी की ज़िंदगी पहले ही अजीरन हो चुकी है और बिलिंग ने गरीब आदमी का जीना धोबर कर दिया है। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स ख़त्म किया जाए।
डिचकोट में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लारी अड्डा के अतराफ तमाम रास्ते बंद करके ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स को मुस्तरद कर दिया। हारूनाबाद में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजर बरादरी का कहना है कि बिजली बिल से इजाफी टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए। आपको बता रहे हैं कि हारूनाबाद में भी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। हारूनाबाद में बिजली बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजर बरादरी का कहना है कि बिजली बिल से इजाफी टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए। डेरा मुराद जमाली में जायदाद का तनाज़ा, आबद अली नामी नौजवान अपने चचा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। मुतासर शख्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद जब मैंने उससे डिस्ट्रीब्यूशन अपना हिस्सा मांगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कहा, तो उसने मुझे जवाब दे दिया कि भाई आपका कोई हक़ नहीं बनता। इस बारे में जो मेरे पास प्रूफ थे, मैंने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को दी, थाने में रिपोर्ट की, लेकिन मेरी कहीं भी दाद रसी नहीं की जा रही। मैं एक मजबूर और एक यतीम हूँ। मुझे मेरे मिल्कियत के बारे में धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरी इंतज़ामिया से मैं मौदबाना गुजारिश है। विहाड़ी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिल्स में लगाए गए टैक्स के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हाथों में बिजली बिल्स उठाकर वापटा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। खारिया में भी बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ आवाम का एहतजाज। मुजाहरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। आपको बता रहे हैं खारिया में भी बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ आवाम का एहतजाज। मुजाहरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर ट्राली चोरी करने वाले गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमान आए रोज़ किसी न किसी जिम्मेदार की ट्राली चोरी करके कम कीमत पर फरोख्त कर देते थे। अहले इलाका ने मुलजमान को रंगे हाथों पकड़कर दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने कई ट्रालियाँ चोरी करने का इंकशाफ किया है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलाहाबाद में शहरी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 200 की बजाय 500 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है। इजाफी रकम ना देने पर बदतमीजी की जाती है। शहरियों ने DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कसूर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। दीपालपुर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका आला अफसरान से नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA SN सलीम की चौधरी नदीम के डेरे पर आमद। हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर SN सलीम बरियात ने कहा कि हल्का PP 38 यूनियन काउंसिल मियानी को मैं अपना घर समझता हूँ। अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। इस मौका पर चौधरी नदीम भल्ली, आतिफ गोंदल, आसिफ भल्ली, सैफ चीमा, नवीद और उस्मान बाजवा भी मौजूद थे। हैदराबाद में अहमद रज़ा नामी शख्स के अगवा का ड्रॉप सीन। अहमद रज़ा और उसका दोस्त खुद ही अगवा बराए तावान में मुलविस निकले। थाना फलेली पुलिस ने मुलजमान को बेनकाब कर दिया। आपको बता रहे हैं हैदराबाद में अहमद रज़ा नामी शख्स के अगवा का ड्रॉप सीन। अहमद रज़ा और इसका दोस्त खुद ही अगवा बराए तावान में मुलविस निकले। थाना फलेली पुलिस ने मुलजमान को बेनकाब कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अनीसुर रहमान की कार्रवाई। महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान के हमरा
نواب مارکیٹ سمیت دیگر علاقوں میں کارروائیاں کی۔ دودھ میں وافر مقدار میں پانی کی ملاوٹ ثابت ہونے پر 9 شیر فروشوں کو گرفتار کر کے دکانوں کو سیل کر کے 600 لیٹر سے زائد مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔ احمد رضا۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عقیل حسین۔ تیرا کیا نام ہے؟ احمد علی۔ باپ کا نام کیا ہے؟ علی محمد۔ کہاں رہتا ہے؟ جال کالونی۔ کیوں ایسی حرکت کی تھی، کیا ہوا تھا؟ میرے کو بینک کی بہت پریشانی تھی، بینک کا لون دینا ہوتا تھا، 5-6 بندے مہینے گھر پہ آتے تھے، دو میلے دار دیکھتے تھے، ہوتا تھا یہ موبائل والا تنگ کر رہا تھا بہت زیادہ، پیسے دو اسماری کام کر رہا تھا۔ کہاں پہ رہ رہے تم؟ 11 نمبر ایوب کر رہے ہوں۔ 11 نمبر ایوب کر رہے ہوں۔ ویڈیو کس نے بنائی تھی؟ دوست میرا اس کو میں راضی کر رہا تھا۔ اس نے ویڈیو بنائی تھی؟ کس نے پلاننگ کی تھی، تم دونوں نے؟ جی میں نے کی۔ پولیس نے کہاں سے پکڑا تمہیں؟ 11 نمبر ایوب کر رہے کہ 8 تاریخ کو ایک میڈم تھی روزینہ جو اپنا احمد رضا کی بیوی تھی، اس نے آ کے بتایا کہ ہم جو ہیں اپنا پاکستان چوک پہ اپنے سسرال کے پاس گئے تھے، تو وہاں سے اپنا کچھ دیر کے بعد میرا شوہر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آج صبح کو اس نے ایک ویڈیو دے دیا میڈیا پہ جس میں اس کو شوہر ننگا لگا پڑا ہے اور بازو بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی بول رہی تھی کہ وہ مجھ سے تاوان مانگ رہے ہیں 8 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد ظاہر ہے اتنا بڑا میٹر تھا، پولیس حرکت میں آ گئی۔ ہمیں انفارمیشن ہوئی کہ یہ جو ہے بندہ یونٹ نمبر 11 میں ایوب کالونی میں ایک مکان ہے کرائے کا، جو اس نے کوئی وسیم علی سے لیا ہے، وہاں پہ ایک اس کا دوست ہے احمد بنگالی، اس کے ساتھ وہاں پہ بریک کے بعد خوش آمدید۔ صوبائی وزیر مواصلات اور تعمیرات علی افضل شاہی کی محکمہ CNW میں آمد۔ صوبائی وزیر کو محکمہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر صوبائی سیکرٹری مواصلات اور تعمیرات مجاہد شیردل، ایڈیشنل سیکرٹری عامر مصطفیٰ، صوبے کے تمام چیف انجینئرز اور دیگر افسران موجود تھے۔ نظام مواصلات اور تعمیرات کو عوامی بہبود کی خاطر تیز کرنے کے لیے پنجاب بھر میں عملی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات علی افضل شاہی کی محکمہ CNW میں آمد۔ صوبائی وزیر کو محکمہ کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر صوبائی سیکرٹری مواصلات اور تعمیرات مجاہد شیردل، ایڈیشنل سیکرٹری عامر مصطفیٰ، صوبے کے تمام چیف انجینئرز اور دیگر افسران موجود تھے۔ نظام مواصلات و تعمیرات کو عوامی بہبود کی خاطر تیز کرنے کے لیے پنجاب بھر میں عملی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں بریفنگ اجلاس۔ سیکرٹری ہاؤسنگ شکیل احمد کی محکمے کے امور اور جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت بارے تفصیلی بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مال روڈ پر PHA کی اجازت کے بغیر کوئی بل بورڈ نہیں لگے گا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ بے ڈھنگے بل بورڈز، پوسٹرز اور بینرز مال روڈ سے ہٹائے جائیں۔ LDA میں 1 ونڈو آپریشن کی سہولت کو بہتر بنایا جائے۔ ادارے میں مقدمہ بازی کے خاتمے کے لیے مؤثر لائحہ عمل بنایا جائے۔ غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو خوبصورت بنانے کی اسکیموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ میاں اسلم اقبال نے کہا کہ پینے کا صاف پانی ہر شہری کا حق ہے۔ حکومت یہ حق ہر قیمت پر دے گی۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے آؤٹ آف دی باکس سولوشن لے کر آئیں۔ وہاڑی میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بلز میں لگائے گئے ٹیکس کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے ہاتھوں میں بجلی بلز اٹھا کر وابٹا آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ مطالبہ ہے، ایک تو پہلے ہی مہنگائی نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے، اوپر سے انہوں نے ہمارا خون پسینہ نچوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر تو جائیں کہاں؟ یہ حکومتیں ہمیں کوئی سہولتیں نہیں دے رہی۔ اگر یہ ہمیں سہولتیں نہیں دیتے نہ دیں، لیکن کم از کم ہمارے بچوں کا خون تو نہ نچوڑیں۔ یہ انہوں نے ہمارا دن رات جینا دوبر کر رکھا ہے۔ بجلی آتی نہیں، بلوں کی بھرمار، ٹیکسوں کی بھرمار، دن رات ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں، ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے اس ملک کا سربراہ کون ہے، کون ہمارا والی وارث ہے، کون
नौशहरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। वतन के गाएंगे, जब जब परचम लहराएंगे, हम गीत वतन के गाएंगे, हम गीत वतन के गाएंगे। बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किए जाने वाला मुल्क पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी की तैयारियां पूरे जोश जज्बे के साथ अपने उरूज पर है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी घरों, होटलों, सरकारी और निजी इमारतों को सबज हिलारी परचम और बरकी कुमकुमों से सजा दिया है। जद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों से ये अलग वतन हासिल किया है, जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को इल्मी राजशुक्री तरक्की अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। 75वीं यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए नौशहरा के बाजारों, शहरों और दुकानों के किनारे लगाए गए स्टॉलों पर सबज हिलारी परचम, बेजस और झंडियों की खरीद व फरोख्त भी जारी है। जोश खरोश देख रहे हैं और जिस तरीके से ये अवाम खुश है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि इस बार भी हमेशा की तरह ये जश्न आज़ादी हम सब मिल के पुरजोश तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी को शाया निशान तरीके से मनाना जिंदा कौम का शार है। नौशहरा के शहरी भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके और यहाँ आपको बताएं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की खिदमत वफाक के हवाले। डॉक्टर फरा मसूद के नए कमिश्नर तैनात होने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, डॉक्टर फरा मसूद का नाम सामने आ रहा है नए कमिश्नर के लिए? जी, इस वक्त मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ताहाल कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात हमारे जराये ने कंफर्म की है कि कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को ग्रेड 21 में प्रमोशन की ट्रेनिंग पे है, जो आजकल वफाक में भेजा जा रहा है। उनकी जगह फरा मसूद का नाम भी लिया जा रहा है और दीगर नाम भी जो है वो लिए जा रहे हैं। ये तबादलों का एक और राउंड जो है वो जल्द शुरू होने वाला है, जिसमें कमिश्नर लाहौर का नाम जो है वो सरफहरिस्त लिया जा रहा है। हमारे जिला ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर के नाम के लिए भी जो है वो उस फहरिस्त में कंफर्मेशन की है। जी, उमर अली इमरान चट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अफसरान को इंसदाद डेंगू आगाही मुहिम जारी रखने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन सोनिया सदफ का गुलबर्ग 3 UC 97 का दौरा। इंसदाद डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी और डेंगू सर्विलेंस का जायज़ा लिया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिससे मौका पर तल्फ कर दिया गया। DC लाहौर उमर शेर चट्टा की हिदायत पर इंसदाद डेंगू इंतजामात का जायज़ा लिया गया। और यहाँ आपको बताएं लाहौर में पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोक्योरमेंट का तफसीली जायज़ा लिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर में पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोक्योरमेंट का तफसीली जायज़ा लिया गया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ डॉक्टर मोहम्मद अदनान से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत अली जान की इजलास में सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट मोहम्मद उस्मान, CEO PHIMC डॉक्टर अली रजा, डायरेक्टर मियां मुनीब और PITB के नुमाइंदान अफसरान ने शिरकत की। CEO डॉक्टर अली रजा की जन्म से सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। PHIMC के सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान को शुरका की तजावीज़ की रोशनी में मजीद बेहतर बनाया जाए। सेक्रेटरी अली जान तमाम कवायद ज़वाबित को पूरा करने की हदायत की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज राय के विजन के मुताबिक सेहत सहूलत प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। ये कहना था सेक्रेटरी सेहत अली जान का। जी, डॉक्टर अदनान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 10 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट कुरतुल ऐन जफर को OSD बना दिया गया। मोहम्मद ज़िशान नदीम को असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधा कृष्ण अवैस सरवर को OSD बना दिया गया, जबकि लारा बसलम को असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट राधा कृष्ण तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद मोहम्मद इब्राहिम बाबर को OSD बना दिया गया है, जबकि खालिद अब्बास को असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद तैनात कर दिया गया। एहसन मुमताज़ को असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल सलमान अकबर को असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ तैनात कर दिया गया है।
लाहौर में मायारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का स्पेशल ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम का इकबाल टाउन में वाक़ मारूफ फालूदा चेन की प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। नाकस इंतजामात और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर प्रोडक्शन बंद कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सलमान शाह से। सलमान, कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। फूड सेफ्टी टीम का इकबाल टाउन में वाक़ मारूफ फालूदा चेन की प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारा गया है। नाकस इंतजाम और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील प्रोडक्शन बंद कर दी गई। किचन एरिया में काकरोच, मक्खी और कीड़े मकोड़े की भरमार पाई गई। प्रोडक्शन यूनिट पर फालूदा तैयार करके शहर में मौजूद तमाम ब्रांचेस पर सप्लाई किया जाता था। किचन एरिया की दीवारों और छतों से उखड़ा गंदा पेंट, टूटे फर्श और खुली नालियों की वजह से कार्रवाई अमल में लाई गई। गंदे बदबूदार बर्तनों में फालूदा तैयार किया जा रहा था। मुलाजमीन के मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की अदम मौजूद पाए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि गैर मेरी खुराक का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंसानी मुजरे सेहत साबित होता है। मार्केट में आने वाले शेख खुदनेश के म्यार में कमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोटरी के नवाही इलाका में सफाई की अबतर सूरत हाल, अहल इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस हवाले से कौमी अवामी तहरीक ज़िला जामशोरों के सदर अब्दुल सत्तार लहर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वो उनके होते हुए भी वो इलाके जो मनपसंद इलाके हैं उन इलाकों के अंदर सफाई की जाती है, लेकिन जो आम आप देखें ये मेन रास्ता है। देखिए ये मेन जो है रोड है जहाँ से बाकी जैसे लोग आते हैं और ये मसरूफ तरीन रोड है। ये सच्चल सर्विस कॉलोनी में हम खड़े हैं। सिर्फ सच्चल सर्विस कॉलोनी के अंदर ये कचरा नहीं है, ये मेन रोड के ऊपर, और इस कचरे की वजह से न जाने कितनी बीमारी जो है वो पैदा होती है। ये हर एक गली के अंदर म्यूनसिपल कमेटी के 1 से लेकर 12 वार्ड तक जहाँ मनपसंद। खैरपुर टामेवाली के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाक़या, इकबाल नामी इलेक्ट्रीशियन करंट लगने से जाँ बहक। प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन मैपको अफसरान की मुबैशना मिली भगत से फीडर पर काम करता था। सब डिवीज़न मैपको के अफसरान अपनी मुजरमाना गफलत को छुपाने के लिए प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन के वर्सा पर दबाव डालने लगे हैं। फरीदाबाद के नवाही गांव सैयदपुर में शाहिद नामी 4 साला बच्चा नहर में गिरकर जाँ बहक। बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चा नहर किनारे खेल रहा था कि अचानक पांव फिसलने के बायस नहर में गिरकर जाँ बहक हो गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। फरीदाबाद के नवाही गांव सैयदपुर में शाहिद नामी 4 साला बच्चा नहर में गिरकर जाँ बहक। बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चा नहर किनारे खेल रहा था कि अचानक पाँव फिसलने के बायस नहर में गिरकर जाँ बहक हो गया। नौशहर फिरोज में मोटरवे पुलिस की DIG फिदा हुसैन मस्तोई के अहकामात पर कार्रवाइयाँ। काले शीशे वाली गाड़ियाँ, फैंसी नंबर प्लेट्स, ओवर स्पीड और पुलिस लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों गाड़ियों को जुर्माने और फैंसी नंबर प्लेट्स, पुलिस लाइट्स गाड़ियों से उतारी जा रही हैं और कई गाड़ियों के ड्राइवर्स के लाइसेंस और कागजात भी जब्त किए जा रहे हैं। DIG मोटरवे पुलिस फिदा हुसैन मस्तोई का कहना है कि ऐसे ड्राइवर्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। झरकी में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। नामालूम डाकू सुनील कुमार नामी शहरी से 5 लाख रुपए नकदी और सोने की चेन छीन कर फरार। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। पुलिस का कहना है कि मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टंडोलायर के इलाके भेल कॉलोनी में घर में आतिशज़दगी। आग ने देखते ही देखते घर को अपनी लपेट में ले लिया। घर में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला ना पहुंच सका। मुतासरा शख्स ने नौमुंतखब नुमाइंदों और मुखय्यर हजरात से माली इमदाद की अपील की है। तहसील चंबड़ के नवाही गांव के प्राइमरी स्कूल में साबिक UC चेयरमैन ने मवेशी बांध दिए। स्कूल में गुज़िश्ता कई साल से उस्ताद मुकर्रर ना होने की वजह से इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इलाके के बासर वडेरे ने स्कूल में उस्ताद मुकर्रर करने की बजाय स्कूल की इमारत में अपनी भैंसें और गधे बांध दिए। शहरियों का आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। सेवन शरीफ में गैस्ट्रो का मर्ज तेज़ी से फैलने लगा। 500 से ज़ायद बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात ना होने की वजह से गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
हबीबाबाद के नवाही गांव के मकीन जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये थड़ा गांव तकरीबन 100 साल से ये बाद है। तो ये थड़ा गांव में एक स्कूल था हबीबाबाद का और ये करमाबाद का। करमाबाद और थड़ा को एक ही स्कूल लगता है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थड़ा। ये तकरीबन इस स्कूल की 300 तादाद है, तो जिनकी वजह से ये स्कूल की छतें गिर गई हैं। जी, हमारा गांव है थड़ा, हबीबाबाद के बिल्कुल करीब है। तो इसकी सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं और इसका स्कूल है जो उसका इतना नाकस इंतज़ाम है कि 6 माह से स्कूल बंद है इधर। तो सबसे रिक्वेस्ट की है लेकिन किसी ने भी नहीं मानी हमारी। तो ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ 1972 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਢਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਛੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर जमान उर्फ जानी पहलवान गुजरांवाला पहुंच गए। 57 कैटेगरी मुकाबलों में मेडल जीतने वाले रेसलर असद अली भी हमरा। जमान उर्फ जानी पहलवान के अहले खाना और शहरियों ने कौमी हीरोज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रेसलर जमान उर्फ जानी पहलवान ने घर पहुंचकर मेडल वालदा के गले में डाल दिया। वालदा ने जज्बाती अंदाज में रेसलर जमान को गले लगाया और प्यार किया। रेसलर जमान उर्फ जानी पहलवान का कहना है कि अगर जदीद ट्रेनिंग के वाक़े मुयस्सर आएँ तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। शांगला में डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। सवात यूनिवर्सिटी शांगला कैंपस में डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स की जानिब से एक रोज़ा फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुनक़िदा सेमिनार में यूनिवर्सिटी तलबा, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुनक़िदा सेमिनार को ब्रीफिंग देते हुए डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर रोहुल अमीन का कहना था कि फ्रीलांसिंग इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ऑनलाइन मार्केट है और इस फील्ड में हुनरमंद तबके की बहुत ज़्यादा कदर कीमत है। इस फील्ड में हर स्किल का बेतहाशा स्कोप है, यहाँ मेहनत का बेहतरीन मुआवजा मिलता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में फ्रीलांसिंग फील्ड ने बहुत तरक्की की है और उरूज की तरफ गामजिन है। दुनिया भर के प्रोफेशनल और क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक रोज़ा हरीपुर में भी सब्सिडी वाली आटे की फराहमी जारी है। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर सूबाई हुकूमत की हिदायत पर जिला हरीपुर में भी सस्ता आटे की फराहमी अवाम की दहलीज पर फराहम की जा रही है। महकमा खुराक के अफसरान AFC शौको सुल्तान ने दरवेश और नसीम टाउन में आटा फराहम किया। इस मौके पर दरवेश के चेयरमैन तैमूर खान और नसीम टाउन के चेयरमैन खान अफसर ऐवान भी मौजूद थे। तैमूर खान और खान अफसर ऐवान ने अपनी अपनी VC में सस्ता आटा अवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। इस मौका पर तैमूर खान का कहना था, रहीम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी DFC साहब का भी और खान ब्रदरान का, अकबर अयूब खान का, यूसुफ अयूब खान का और ख़ास तौर पे वज़ीर आला साहब का कि उन्होंने ये खसूसी ये आटे के हवाले से। पर यह है कि बड़ा मुश्किल है जी, 15 दिन में एक दफ़ा कोटा दिया जाता है। अगर ये कम अज़ कम हफ्ते में 2 दिन हो तो तब इसके साथ गुजारा हो सकता है। ये लोगों के हालात आप देख लें, इसमें तो बहुत बड़ी परेशानी है और लोग एक दूसरे को मारने के लिए आटे के लिए भाग रहे हैं कि सस्ता आटा होता है ज़ाहिर है। तो इसमें अगर हफ्ते में 2 दफ़ा हो तो मैं आपकी मेहरबानी है। लकी मरवत में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल खान और डॉक्टर एहसानुल्लाह खान ने पौधे लगाए। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत के फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल खान और ब्लीसिंग विंग्स फाउंडेशन के सदर डॉक्टर एहसानुल्लाह खान दानिश ने लकी मरवत के गर्म तरीन इलाके तल में वसी पैमाने पर पौधे लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर शरीफुल्लाह, शाहिदुल्लाह दिलावर खान, साबका चेयरमैन डॉक्टर इरफानुल्लाह और ताहिर अफजल समेत दीगर मौजूद थे।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्लीसिंग विंग्स फाउंडेशन के सदर डॉक्टर एहसानुल्लाह खान दानिश का कहना था कि इलाके में तकरीबन 3 लाख के करीब पलदार और सायेदार पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है, जिनमें 50,000 पौधे अगस्त के आखिर तक लगाएंगे। उन्होंने जंगलात को निहायत अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा कि जंगलात किसी भी इलाके की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के साथ साथ माहौल में निहायत मुस्बत असरात छोड़ते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस बार जश्न आज़ादी के मौके पर हर जैकबाबाद में तूफ़ानी बारिश के बायस शेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस बिजली के 16 फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शदीद बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ रोड और गलियाँ तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मुसलसल बारिश के बायस कच्चे मकान गिरने का खदशा भी बढ़ने लगा है। मिस्टर एंड जूनियर मिस्टर पाकिस्तान में जीतने वालों के एजाज़ में एशिया लाइव फिटनेस जिम के फाउंडर शारिक अली ने एहतमाम किया। मज़ीद जानते हैं कराची से इमरान अली की इस रिपोर्ट में। लाइव फिटनेस जिम के फाउंडर और कायद-ए-आज़म बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट शारिक अली का कहना था कि ज़्यादातर तो तकरीबन हम 90% अपना खुद ही करते हैं अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती है। हमारे पास डिपार्ट नहीं है, लड़कों को ढूंढा जाता है कि ट्रेनिंग के लिए। फिर महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई हो गई है, लड़के कुछ दिन ट्रेनिंग करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है ये कि भले फंड ना दे मगर जॉब्स का अट्रैक्शन तो दे कम से कम। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी सपोर्ट आए तो इंशाल्लाह ताला बहुत टैलेंट है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला हमारा एशिया का या साउथ एशिया का प्लान है जिसमें 8-10 ममालिक को हमारे कॉन्टेक्ट में है। इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि पाकिस्तान में वो इवेंट कराएं। कायद-ए-आज़म बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के सदर मोहम्मद रमजान का कहना था कि कायद-ए-आज़म फेडरेशन उसमें अमल में आई और आज मिस्टर पाकिस्तान हमने कराया। मिस्टर पाकिस्तान वो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब को हमने चीफ गेस्ट रखा था, कुछ मसरूफियात की वजह से वो हमें ओके नहीं हो सके। उनके वालिदैन ने अपने पेट काटा, अपना खाना पीना अलग कर दिया, बच्चों पे लगा दिया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ये बगैर सपोर्ट के यहाँ तक आ गए। मिस्टर एशिया पाकिस्तान में होगा, मिस्टर यूनिवर्स पाकिस्तान में होगा, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ओलंपिया सबसे बड़ा टाइटल है, तो उसमें हम क्वालिफाई कर सकें। कायद-ए-आज़म बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को ये रौनक बख्शी कि उन्होंने पाकिस्तान से मुल्क के चारों सूबों से कायद-ए-आज़म बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के मीडिया सेक्रेटरी की हैसियत से और आइंदा मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के शहीदों के नाम होगा, पाक आर्मी के शहीदों के नाम होगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़ेर एहतमाम अदबी कुतब मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद अदब की शौक़ और पैदा करना था। मिस्टर बुक्स की जानिब से नुमाइशी अदबी मेला में तारीख़ी कुतब के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें तारीख़ अदब, सकाफ़त इस्लामी, हिस्ट्री समेत आलमी कुतब मौजूद थीं ताकि अदब को ज़िंदा रखा जाए। तकरीब पे मेहमान खुसूसी वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग शाहिरा शाहिद थी। मुकर्रीन का कहना था कि अदबी कुतब मेले का असल मकसद आज की नौजवान नस्ल को अदब और सकाफ़त के करीब लाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।